Today we will discuss the matrices. Matrices चैप्टर थर्ड है आपकी बुक का, और इसके अंदर से जो रिलेटेड सिलेबस है वो NCERT की एक्सरसाइज 3.4 की ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। जो मैट्रिसेस है वो मैट्रिक्स के प्लूरल से बना है, यानी कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड matrix can be represented by capital letter say A, B, C or X, Y, Z. Suppose in journal form A equals to A11, A12, A13 up to A1n, A21, A22, A23, A2n, AM1, AM2, AM3, AMN. That is the representation of matrix. In matrix, horizontal line are called row. Horizontal line are called row, and vertical line, vertical line is called column. इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जर्नल Aij M by here M is row and N is column. If the order of a matrix if the number of row is M and number of column is N, then the matrix is over M by N. We can say that if we can write this type of matrix, कैसे कि A equals to 3, 2, 4, 6, 7, 8. Here first row, second row, first column, second column and third column. Here is order is 2 by 3. First we can write row and then second we can write column. तो हम पहले क्या लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर? रो लिखते हैं और फिर हम जो है कॉलम लिखते हैं जब हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज M by. If a matrix contain one element A is equals to A11, so then the order is 1 by 1. If matrix contain A11, A12, two elements, then number of row is 1 and number of column is 2. So here order is 1 by 2.
2, 1 by 2. If we can write in general, matrix can be written as A equals to Aij m by. It means 1 is less than equals to m. 1 is less than equals to I is less than equals to m, and j is less than equals to m. 1 is less than equals to j. ये इसका मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और रो का हिसाब होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम कहते हैं एक एग्जाम्पल 1 है मैट्रिक्स के अंदर। तो एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? एग्जाम्पल 1 कहता है कि एग्जाम्पल 1 कहता है consider the following information regarding the number of men and women worker in 3 factory, first, second and third. First, second and third. Represent the above information in the form of 3 by 2 matrix. What does the entry in the third row and second column represent? तो एग्जाम्पल 1 है ये NCERT का है, and the information is represented in the form of, इसके मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? 30, 25, 27, 25, 31 और 26। तो ये इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 2 3, 3 by 2 ऑर्डर हुआ। अब ये कहता है द मैट्रिक्स कैन बी यूज रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली इन फिगर इन फेस इक्वेशन। अब ये कहता है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। द एंट्री इज in third row and second column represent of women worker in family. The entries in third row and second column represent the number of women workers. Number of women workers. ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर? 8 है। इट मींस m into n is equals to 8। तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8, और ऑर्डर जो होगा इसका ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर होगा 1:8, 2 by 4 and 4 into 2 and 8 into 1. That are the possible order of this matrix. Now एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है? एग्जाम्पल थर्ड कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 3 by 2 मैट्रिक्स whose elements are given. Aij
is equals to 1 by 2 modulus of I minus 3j। यानी कि हमें कंस्ट्रक्ट करनी है किस ऑर्डर की, 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और जिसके एलिमेंट 1/2 I minus 3j। अब इन जनरल 3/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी A, वो क्या होगी, वो होगी A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो ये होगी 3/2। नाउ टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट है, फाइंड आउट है A11 इट मीन्स A11 1/2 I B1 और J B1 it means 1 minus 3 into 1 that equals to 1/2 into 2 that is equals to 1, that is equals to 1। now A12 1/2 1 minus 3 into 2 3 into 2 6 minus 1 it means 5/2। A21 1/2 2 minus 3 into 1 3 minus 1 is that equals to 1/2। A22 क्या होगी, A22 होगी 1/2 into 2 minus 3 into 2 3 to the 6 minus 2 4 और 4/2 that is equals to 2, that is equals to 2। and A31 is equals to 1/2 3 into minus 3 into 1 और that equals to 0। A32 होगी 1/2 and 3 minus 3 into 2 3 to the 6 minus 3 is 3/2। so we can construct these matrices। इसकी जगह रखेंगे A11 की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। A12 की जगह क्या रख देंगे, 5/2 रख देंगे। और A21 की जगह 1/2 रख देंगे और A22 की जगह 2 रख देंगे और A31 की जगह 0 रख देंगे और A32 की जगह 3/2 रख देंगे। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/2 होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नंबर 1 है कॉलम मैट्रिक्स। Column matrix. A matrix is said to be a column matrix if and only if it contains only one column. A matrix is called column matrix if it contains only one column। इसका मतलब क्या हुआ, A और A11 A21 A31 तो ये एक कॉलम हुआ, इसको हमने कहा कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी है रो मैट्रिक्स और इसको इन जनरल हम कर सकते हैं A इक्वल्स टू Aij। इन जनरल हम इसको कर सकते हैं क्या, Aij क्या होगी n/m/1
in general Aij m by 1, m by 1 होगा, is order of this matrix is m by 1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 by 1. रो मैट्रिक्स, a matrix contain only one row is called a row matrix. That matrix A11, A12, A13. That matrix is called row matrix. We can write in general B equals to Bij is 1 by n. 1 by n. Order of this matrix is 1 by n. Now, very important definition, that is square matrix. A matrix in which number of row is equals to number of column. जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे A11, A12, A21, A22, तो दैट इज 2 by 2 मैट्रिक्स. तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है. इन जनरल we can write B equals to Bij m by n, where m equals to n. It means we can say that Bij equals to m by n. तो हम जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम इक्वल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. इसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर केवल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर और सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. जैसे A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33. इस मैट्रिक्स का जो ये डायगोनल है ये नॉन जीरो होता है. यानी कि हम जनरल फॉर्म में अगर लिखने लगे कि A इक्वल्स टू Aij m by n, where I equals to j is not equals to 0 and I not equals to j is equals to 0. इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. अब है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, कि जिसमें क्या होते हैं कि ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a square matrix is said to be identity matrix if it can be denoted by A, the main diagonal of these matrix is same, that is 1 1. That matrix is called identity matrix. इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं. और एक होती है जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? all the elements of matrix is called zero. Zero matrix, a matrix O is called zero matrix if a square matrix जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको हम कहते हैं
क्या कहते हैं उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स।